Good morning, class 9th. I hope you all are doing your work properly and regularly. This is my third and last video of chapter Fundamental Unit of Life. We have studied cell wall, plasma membrane and nucleus in detail. Today we are going to study other cell organelles. So let's start with Golgi apparatus. Golgi apparatus was first described by a scientist, Camillo Golgi. It is a system of membrane-bound vesicles called cisterns. Its function include the storage, modification and package of cell products. The complex sugar are made from simple sugar in Golgi apparatus. It is also involved in the formation of lysosome. Students, Golgi apparatus is also known as Golgi complex or Golgi bodies. कैमिलिनो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार गोल्गी apparatus को नोटिस किया था सेल के अंदर. It consists of membrane-bound structure arranged parallel to each other. As you can see in this figure, गोल्गी apparatus का जो स्ट्रक्चर होता है वो पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होता है, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर्न्स. मेन फंक्शन है गोल्गी apparatus का स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकेजिंग ऑफ सेल प्रोडक्ट्स में हेल्पफुल होना. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. सेल ऑर्गेनेली लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्गी apparatus एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. This is the figure of Golgi apparatus. As you can see, cistern is here. The cavity between cistern is called lumen. And these are the vesicles, as you can see here. And these are the newly forming vesicles. Now, lysosome is here. Lysosomes are sac-like structure in a cell surrounded by membrane. Lysosome भी एक sac type structure होती है जो एक membrane से surround रहती है. It contain powerful digestive enzyme. Enzymes are made by RER or to digest the worn out cell organelle, bacteria, etc. When the cell get damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell, hence called as suicidal bags of a cell. It is a waste disposal system of the cell. Lysosome भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल की. इसकी सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है, लेकिन सेल लाइसोसोम और ऑर्गेनेली से स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं, जिनका मेन फंक्शन है सेल के अंदर आने वाले फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर सेल की जो ऑर्गेनेली है, सेल के जो दूसरे पार्ट्स हैं, अगर वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो ये बस्ट हो जाते हैं और उन पार्ट्स को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसीलिए हम लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. स्टूडेंट, हमें एक क्वेश्चन का यहाँ पे ध्यान रखना है. हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. आंसर होगा इसका बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम इन इटसेल्फ. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. Next important organelle is mitochondria. It is covered by a double membrane. Mitochondria भी double membrane structure है. Mitochondria are small rod shape organelle. इसकी shape को अगर ध्यान से देखेंगे साइज में काफ़ी छोटी होती है, लेकिन एक रोड शेप organelle है. It is a double membrane structure actually. Outer membrane is very porous and the inner membrane is deeply folded, creating a large surface area for ATP molecule synthesis. आउटर कवरिंग माइटोकॉन्ड्रिया की
काफ़ी पोरस होती है, उसमें काफ़ी होल्स होते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन काफ़ी डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड क्यों होती है ये? इसका आंसर होगा बेटा, डीपली फोल्डेड माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो है पावर को जनरेट करना, और विद इन द सेल पावर जनरेट कैसे होगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इनर वॉल फोल्डेड होती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। एज यू कैन सी हियर, outer membrane, then inner membrane is folded here. The fluid that is present inside the mitochondria is matrix, and the folds are called cristae. Ribosomes are also here inside the mitochondria, and mitochondria is the organelle in which its own DNA and ribosomes is also present. ATP is the energy currency of a cell, hence the mitochondria are called as powerhouse of the cell. हम सभी अभी तक जान चुके हैं कि एक सेल का जो करेंसी होता है वो ATP होता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA and ribosome, therefore they can make their own proteins. इसको स्पेशली आप लर्न रखेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो सेल को पावर तो देती ही है, साथ ही साथ उसका अपना DNA और राइबोसोम भी होते हैं. Our next organelle is plastid. Plastid is also a double membrane bound structure. प्लास्टिक भी एक डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, बट दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. केवल प्लांट सेल के अंदर ही यह प्रेजेंट होता है, एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में इसकी ज़रूरत नहीं है, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है. दे आर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप. ज़्यादातर प्लास्टिड्स की शेप स्फेरिकल होती है. दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड भी स्पेशल हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. एनफोल्डिंग द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड थैलेक्वाइड. अगर आप प्लास्टिड की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसकी डबल स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, एंड देयर आर थैलेक्वाइड टाइप स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. ये जो ब्लॉक्स आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, इन ब्लॉक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जिन्हें हम थैलेक्वाइड कहते हैं. Enfolded of membrane is called thylakoids, or matrix is called stroma, seat for enzyme action. अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, जिससे कि इसके अंदर एंजाइम्स के एक्शंस कंप्लीट होते हैं. कुछ बुक्स में प्लास्टिड्स के 2 टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन कुछ में 3 टाइप्स दिए हुए हैं. तो हम अकॉर्डिंग टू NCERT चलेंगे बेटा. फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड. कलरफुल प्लास्टिड में सबसे पहले आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट. It contain green pigment, it means chlorophyll, that are useful for photosynthesis, also contain various other pigment like yellow और orange. कलरफुल में सबसे पहले हमारा क्लोरोफिल आएगा, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है, जिसकी हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर कर लेते हैं अपने लिए. और सेकंड है हमारा chromoplast. It is also colorful plastid, but they provide color to flower and fruits. Chromoplast का काम दूसरे fruits और vegetables को color देना है. Next is leucoplast, white or colorless plastid. The main function of this plastid is they help in storage of various substances like starch, oil, protein and fat, etc. This was all for today. Thank you so much.